خوش آمدید listeners. Today I am going to start last episode of اے دل ہے مشکل از قلم پریشاں. نینا کی چڑیلیں آئیں اس کے پاس تو نینا نے اپنا کارنامہ سنایا. دونوں نے آگے سے یہ کہا کہ بیچارے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کم سے کم روم میں ہی سونے دیتی. نینا نے بھی دھمکی دے کے چپ کرا دیا کہ اگر اس کی سائڈ لی تو ناراض ہو جائے گی. وہ دونوں بھی چپ ہو گئی. ولیمے کا فنکشن ڈے ٹائم کا تھا. زیادہ گیسٹ نہیں بلائے تھے, بس فیملی اور کچھ فرینڈز تھے. نینا نے مراد کو بلایا تھا کہ وہ اسے تیار کرے, لیکن مراد نے تیار نہ کیا, جس کی وجہ سے نینا بہت زیادہ غصے میں تھی. لہنگا پہنا تھا آج اس نے اپنی پسند کا, جو وہ خود لے کے آئی تھی. تیار بیوٹیشن نے کیا تھا. مراد ایش گرے 3 پیس میں ملبوس آج سب لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا. آج یوشا بھی ریڈ ساڑی میں تیار بہت خوبصورت لگ رہی تھی, جبکہ شہرام بلیک میں تھا. مرحا ریڈ فروک میں تھی. شیان نے بلو سوٹ پہنا تھا. وہ اس کی گوری رنگت پہ کافی جچ رہا تھا. ویسے آپ کو روز ساڑی پہننی چاہیے. یوشا ان کو فوٹو سیشن دیکھ رہی تھی جب شہرام بولا تھا, کس خوشی میں جی؟ میری خوشی کے لیے جی. شہرام مسکرایا تو اس کا ڈمپل نظر آیا. اور مجھے کیا ملے گا یہ پورا تھان پہننے کا؟ یوشا اس کا ڈمپل دیکھ کے بولی تھی. میں اور میری تعریف. شہرام نے آنکھ دبائی. یوشا جو اس کو غور سے دیکھ رہی تھی, سٹ پٹا کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی. سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری تیرے نچلے ہونٹ پہ کتاب لکھوں. شہرام نے مسکراتے ہوئے بول کے اس کا لب آزاد کروایا. اس کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا. یوشا اس کی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا گئی. سین چینج. نینا آج اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی تھی, لیکن پھر مراد ان کو کچھ کہہ کر منا چکا تھا, جس کی وجہ سے نینا کو اور بھی زیادہ غصہ آیا تھا. مطلب حد ہو گئی. اب وہ کچھ دن کے لیے پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی. شادی ہوئی ہے, کوئی قید نہیں. لیکن جب اس کی مما نے کہا کہ پھر کبھی آ جانا تو منہ بناتی ہوئی خاموش ہو گئی. مراد نے شایان کو رات کے بارے میں بتایا تو پہلے تو شایان بہت ہنسا, لیکن پھر اس کے منہ بنانے پر سیریس ہو گیا. شایان نے اس کا روم آج پھر دوبارہ سے تیار کرا دیا تھا. سب گیسٹ کے جانے کے بعد وہ تینوں نینا کے ہی روم میں بیٹھی تھی. یوشا اور مرحا اس کو سمجھا رہی تھی کہ اب شادی ہو گئی ہے تو غصہ ختم کر دو, لیکن وہ بس ہوں ہاں ہی کر رہی تھی. بڑی مشکل سے غصہ کنٹرول کیے بیٹھی تھی. اول تو اس کو غصہ آتا نہیں تھا, لیکن جب آتا تھا تو پھر کسی نہ کسی کی تو شامت ضرور آتی تھی. کافی سمجھا بجھا کے وہ دونوں چلی گئی تھی. اب اثر ہوا یا نہیں یہ دیکھنا تھا. مراد بھی باہر شہرام کے ساتھ بیٹھا تھا. شیان کو کام تھا تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر وہ دونوں باہر آئیں تو مراد کو روم میں بھیج دیا. ہم نے تو اپنی طرف سے سمجھا دیا ہے, آگے اللہ مالک ہے تمہارا, یوشا شرارت سے بولی تھی. مراد سر ہلاتا ہوا چلا گیا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک کشن سیدھا منہ پہ لگا. اس کی توقع کے مطابق ہی اس کا استقبال ہوا تھا, اور وہ اپنے کمرے کی حالت پر افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا. کمرہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. پھولوں کی لڑیاں ٹوٹی ہوئی. آدھا کمبل بیڈ کے اوپر آدھا نیچے تھا. کشن نیچے پڑے اپنی حالت پہ رو رہے تھے. سامنے کھڑی لڑکی کچھ گھنٹوں کی دلہن ہرگز نہیں لگ رہی تھی. بال بکھرے ہوئے, ایک کان میں جھمکا اور دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا. باقی جولری بیڈ پہ بکھری ہوئی. دوپٹہ آدھا کاندھے پہ آدھا نیچے جھاڑو دیتا ہوا. اس نے سامنے کا منظر دیکھ کر گہری سانس لی. خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو. وہ گرائی تھی. اس کا اٹھایا ہوا قدم ہوا میں ہی معلق رہ گیا. تم نے اپنی مرضی کر لی نا, جو چاہا ہو گیا. اب تم اگر میرے آس پاس بھی نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا. ابھی کے ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ. وہ زہر خند لہجے میں بولی تھی. پلیز میری بات تو سنو. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی. مجھے کچھ نہیں سننا, تم جاؤ یہاں سے. وہ حلق کے بل چلائی تھی. لیکن میں اس ٹائم کہاں جاؤں گا, اچھا نہیں لگتا. اس نے سمجھانے کی کوشش کی. مجھے کچھ, وہ کہتی ہوئی رکی. نظر مراد کے پیچھے دیوار پہ تھی اور چہرے پہ خوف تھا. مراد نے حیرت سے اس کو دیکھا. ابھی تو شیرنی بنی ہوئی تھی, اب کس سے ڈر گئی؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیوار پہ دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا. پیچھے ایک چھپکلی تھی دیوار پہ جو نینا کو دیکھ رہی تھی, اور نینا اس کو. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. مراد کی بتی سی نکلی, لیکن پھر سیریس شکل بنا کے اس کی طرف مڑا, جو ابھی تک چہرے پہ خوف لیے دیوار کو ہی دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے, تم آرام سے رہو, میں جا رہا ہوں. مراد سیریس شکل بنا کے جانے لگا. رکو, کہاں جا رہے ہو؟ نینا جلدی سے بولی. جتنا وہ چھپکلی سے ڈرتی تھی اتنا کسی سے نہیں ڈرتی تھی. تم نے ہی تو کہا ہے کہ جاؤ روم سے. اب میں جا رہا ہوں, تم آرام سے رہو. مراد مسکراہٹ دبا کے بولا, جو نینا نہ دیکھ پائی تھی.
مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نینا آہستہ بولی۔ کس کے ساتھ؟ مراد انجان بنا۔ وہ دیکھو، نینا نے اشارہ کیا تھا۔ اچھا، یہ خیر ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی، تم سو جاؤ، مراد مزے سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے سو جاؤں؟ اگر یہ میرے اوپر گر گئی تو؟ نہیں نہیں، تم بھی میرے ساتھ سو۔ نینا بے دھیانی میں کیا بول گئی پتا نہیں چلا۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، تم نے مجھ پہ اتنا غصہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کے مراد نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ کنٹرول کیا۔ پلیز نہیں کروں گی غصہ، تم اس کو مار دو نا پلیز، نینا منت کرتی بولی۔ ٹھیک ہے، پہلے تم روم کی حالت ٹھیک کرو، پھر میں اس کو بھگاتا ہوں۔ مراد کی شکل سیریس تھی۔ ہاں، میں بھی ٹھیک کرتی ہوں، نینا کہتی ہوئی جلدی جلدی سب کچھ اٹھانے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں پورا روم اپنی اصلی شکل میں تھا، بس نینا کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا جو مراد کو بہکا رہا تھا۔ دیکھو، ہو گیا، اب پلیز بھگا دو نا اس کو، نینا پھر بیچارگی سی شکل بنا کے بولی تھی۔ مراد کو ترس آ گیا اس پر اور اس نے چھپکلی کو وہاں سے بھگا دیا۔ ہو گیا تمہارا کام، اب مجھے کیا ملے گا؟ مراد اس کی طرف قدم اٹھاتا ہوا مخمور لہجے میں بولا۔ اس کا بکھرا سراپا، پھر ملکیت کا احساس بہت کچھ کرنے کو اکسا رہا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اس کی نظریں دیکھ کر نینا گھبرائی۔ میں خود لے لیتا ہوں، مراد نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ مراد کی باہوں میں آ گئی۔ چھوڑو، نینا پھڑپھڑائی تھی، چاہ کے بھی اس کو کچھ سخت نہ کہہ پائی۔ نہ چھوڑوں تو؟ مراد نے کہتے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کر دیے۔ پلیز مراد، نینا کی آواز ہلکی سی تھی، مراد کی اتنی قربت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جو تم نے مراد کو تڑپایا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ مراد نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ پلیز، نینا کے گال دہکنے لگے، دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، ماتھے پہ پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نظر آئی تھی۔ مراد بغیر کچھ کہے اس کی سانسیں قید کر گیا۔ نینا کی حالت غیر ہوئی، اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی مراد کی مضبوط پکڑ میں تھے۔ نینا بے بس ہو گئی تھی، اسے لگا بس اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ مراد کو اس کی حالت پہ ترس آیا تو وہ پیچھے ہوا تھا، پرشوق نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نینا اپنا بگڑا ہوا تنفس سنبھالتی اس کے سینے سے لگ گئی تو مراد نے زور سے اس کو خود میں بھینچ لیا۔ کیوں کیا ایسے؟ نینا کا سانس بحال ہوا تو وہ بولی۔ کیسے؟ مراد جان کے انجان بنا۔ شادی ایسے کیوں کی؟ نینا نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا۔ سب کی شادی ہو رہی تھی سوائے ہمارے، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوا، مراد منہ بنا کے بولا۔ ہمارا کوئی فنکشن بھی نہیں ہوا، میں نے اتنا کچھ سوچا تھا اپنی شادی کے لیے، میں نے بلیک لہنگا بھی نہیں پہنا، مجھے بگی میں بیٹھ کے آنا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، سب تمہاری وجہ سے۔ نینا نے منہ بسوڑتے ہوئے اس کے سینے پہ مکہ مارا۔ ہاں تو تم نے بدلہ لے لیا تھا نا کل مجھے مچھروں میں سلا کر، مراد ہنستے ہوئے بولا۔ سوری، نینا کو شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے آج کیوں روم سے نکالنے کا ارادہ تھا؟ مراد کو یاد آیا، مجھے غصہ تھا۔ نینا اس کے سینے سے لگی، منہ بسور رہی تھی۔ کس بات کا غصہ تھا جی؟ مراد پیار سے بولا۔ تم نے مجھے تیار بھی نہیں کیا تھا اور مجھے گھر بھی جانے نہیں دیا۔ نینا بچی بنی ہوئی اس کی شکایت اسی کو لگا رہی تھی۔ تیار نہ کرنے کے لیے سوری میری نین، اور پلیز اتنی مشکل سے تو تم میرے پاس آئی ہو، کیسے جانے دیتا؟ مراد مشکل سے بولا۔ وہ بغیر اس کی حالت کا خیال کیے اس کے سینے سے لگی اس کے جذبات بہکا رہی تھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے خود پہ جبر کیے ہوئے تھا اور برداشت نہ کرتا اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، نینا ہوش میں آئی تھی۔ اب چھوڑنا بہت مشکل ہے، مراد کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ نہیں پلیز، نینا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ مراد نے آہستہ سے اس کو بیڈ پر بیٹھایا تو وہ جانے لگی۔ آج فرار ناممکن ہے، مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نینا نے بھرائی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، مراد نے کھینچ کے اس کو خود میں چھپا لیا۔ نینا بھی پرسکون ہوتی خود کو اس کے حوالے کر گئی تو مراد نے لائٹ آف کر دی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ نینا اس کی شکایت اسی سے لگاتی رہی اور مراد اس کی شکایت دور کرتا رہا۔ رکی ہوئی تھی میری سانس میرے سینے میں، اسے گلے نہ لگاتا تو گھٹ کے مر جاتا۔ سین چین۔ مرحا فریش ہو کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی جب شایان روم میں آیا، اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ مرحا مسکراتے اپنے کام میں مصروف رہی۔ شایان چینج کر کے آیا تو مرحا ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپاتا ہوا اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ شایان، مرحا کچھ سوچ کے بولی۔ جی میرا گلاب۔ شایان تھوڑی اس کے کاندھے پہ ٹکا کے بولا۔ کیا آپ کو کسی سے محبت ہوئی؟ مرحا کو پتا نہیں کیا سوچا تھا۔ جی بالکل ہوئی ہے نا تم سے، شایان اس کو دیکھ کے بولا۔ کیا مجھ سے پہلے کسی اور سے نہیں ہوئی؟ وہ پتا نہیں کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی نہیں،
تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں. ویسے خیریت کیوں پوچھ رہی ہو؟ جی خیریت ہے، بس میں کنفرم کر رہی تھی کہ کوئی ایسا ہے کہ نہیں جس سے آپ کو بچا سکوں. ایک ہے تو صحیح، لیکن میں خود سنبھال لوں گی اس کو. مرحا اس کی طرف مڑی تھی. کیا مطلب؟ شان کو سمجھ نہ آئی. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، چھوڑیں. مرحا اس کے ہاتھ ہٹاتی بولی. نہیں چھوڑنا. شان ضدی بچے کی طرح سر نامے ہلا کے بولا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ میرا دل کہتا ہے نہیں چھوڑنا. شان کہیں سے بھی وہ خڑوس نہیں لگ رہا تھا جو ہاسپٹل میں ہوتا تھا. پھر سنبھالیں اپنے دل کو، ابھی مجھے کام ہے. مرحا پیار سے بولی تھی. نہیں. شان نے منہ بنایا. جی چلے چھوڑیں. مرحا نے کہا تو شان کو چھوڑنا ہی پڑا. حسین لوگ مغرور ہو گئے، اب تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں. شان منہ لٹکا کے بیڈ پہ چلا گیا. ڈرامے باز. مرحا نے مسکرا کے سر جھٹکا. سین چینج. ولیمے سے واپسی پہ شہرام اس کو گول گپے کھلانے لے گیا تھا، لیکن اس کو گاڑی میں ہی بیٹھائے رکھا تھا کیونکہ وہ ساڑی میں تھی اور شہرام کسی کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا اس پر. کافی دیر سے وہ دونوں واپس آئے تھے. یوشا نے گھر کا دروازہ کھولا تو ساری لائٹس آف تھیں. ابھی وہ وہیں کھڑی تھی کہ پیچھے سے شہرام نے اس کو باہوں میں اٹھا لیا. کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں. ممی آ جائیں گی، وہ اٹھی ہوں گی. یوشا نے اس کا کاندھا ہلایا تھا. تو وہ ڈیڈ کے ساتھ ہوں گی نا، ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گی. شہرام روم کی طرف بڑھا. ویسے آپ کو نہیں لگتا گھر میں کافی خاموشی ہے؟ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا. ہاں، ہمارے علاوہ کوئی ہے جو نہیں. پھر کیا خیال ہے، کیوں نہ گھر کی خاموشی ختم کی جائے؟ شہرام نے روم میں آتے پاؤں سے دروازہ بند کیا. کیسے؟ موم ڈیڈ کو دادا دادی بنا کر. شہرام نے بول کے اس کو گہری نظروں سے دیکھا اور بیڈ پہ بیٹھا گیا. یوشا لال ہوتی سر جھکا گئی. شہرام فریش ہو کے آیا تو یوشا آنکھ بند کر کے لیٹی تھی. شہرام مسکرا کے اس کو باہوں میں بھرتا ہوا خود بھی لیٹ گیا. تھک گئی ہیں؟ شہرام اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. یوشا کو سکون محسوس ہوا تو سر ہلا گئی. چلیں آپ کی تھکن کا علاج کرتا ہوں. شہرام اس کے لبوں پہ جھکا. یوشا کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی. شہرام کے سینے پہ ہاتھ مارا تھا. شہرام مسکرا کے پیچھے ہوا. شرم کر لیا کریں. یوشا لال سرخ چہرے سے بولی تھی. نہیں آتی. شہرام آنکھ دبا کے بولا. ابھی شہرام اس کی طرف جھکتا ہی کہ اس کا فون بجا. شہرام بد مزہ ہوتا ہوا پیچھے ہوا. یوشا ہنس پڑی. 2 منٹ بعد فون پہ بات کر کے آیا تو منہ بنا ہوا تھا. کیا ہوا؟ آئی جی صاحب کا فون تھا، ابھی بلا رہے ہیں. شہرام منہ بنا کے چینج کرنے گیا. خیریت ہے؟ یوشا کو فکر ہوئی. جی جی سب خیریت ہے، بس کچھ کام ہے، آپ سو جائیں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا. شہرام اس کا ماتھا چومتا ہوا چلا گیا. میں ویٹ کروں گی، جلدی آئیے گا. یوشا پیچھے سے بولی. شہرام مسکرا کے مڑا اور فلائنگ کس پاس کرتا ہوا چلا گیا. وہ شخص جب سے میری آنکھوں کے حصار میں ہے، مجھے لگا کہ زمین میرے اختیار میں ہے. سین چینج. صبح مراد کی آنکھ کھلی تو نینا اس کے بازو پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی. اس کو دیکھتے ہی مراد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی. مراد یوں ہی لیٹا ہوا اس کو دیکھتا رہا. ایک ہی رات میں کتنا کچھ بدل گیا تھا. اس کی نظروں کی تپش سے نینا کی آنکھ کھل گئی تھی. پہلے تو چھت کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر چھت سے مراد کی طرف دیکھا. مراد دیکھ کر مسکرایا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی. گڈ مارننگ. مراد نے اس کا گال سہلایا. مارننگ. نینا اٹھ بیٹھی تھی. مراد پھر لیٹ گیا. میری منہ دکھائی. نینا نے ہاتھ آگے کیا. وہ بھی مل جائے گی، پہلے مجھے تو کچھ دو. مراد نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا. میں تو مل گئی ہوں، اور کیا چاہیے؟ نینا اترا کے بولی. فریش ہو کے نیچے آ جاؤ، پھر منہ دکھائی مل جائے گی. مراد اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہوا اٹھ گیا تھا. نینا مسکراتی. کچھ دیر بعد نینا نیچے آئی تو مراد باہر گارڈن میں تھا. نینا سب سے ملتی ہوئی گارڈن میں آ گئی. کہاں ہے میری منہ دکھائی؟ نینا نے آتے ہی پوچھا تھا. وہ جو دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا اس کی طرف مڑا. آؤ. مراد اس کا ہاتھ تھام کر پورچ کی طرف لے گیا. وہاں باقی گاڑیوں کے ساتھ ایک ریڈ BMW بھی کھڑی تھی. آہ! نینا نے زور سے چیخ ماری تھی. یہ کس کی ہے؟ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے. مراد اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر مسکرایا تھا. سچ میں؟ نینا نے تصدیق چاہی. جی سچ میں. مراد بازو سینے پہ باندھ کے اس کو دیکھ رہا تھا جو اب گاڑی کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھ رہی تھی. جب یقین ہو گیا تو مراد کی طرف آئی. پسند آئی؟ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑا. ہاں بہت، تھینک یو سو مچ. نینا کہتی اس سے لپٹ گئی. مراد نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھے. لیکن تمہیں کیسے پتا چلا مجھے یہ گاڑی پسند ہے؟ مجھے تو اور بھی بہت کچھ پتا ہے. مراد اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے گارڈن کی طرف بڑھا تھا. جیسے کہ؟ نینا اس کی طرف مڑ کے رکی تھی. جیسے کہ تمہیں کھانے میں بھنڈی پسند ہے، میٹھے میں کھیر،
तुम्हें गोलगप्पे पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है, तुम्हें मेकअप करना पसंद है, तुम्हें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज पसंद है, लेकिन तुम कभी गई नहीं हो, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हो, तुम्हें घुड़सवारी पसंद है लेकिन कभी की नहीं, और भी बहुत कुछ पता है। मुराद इसकी कमर में हाथ डालता हुआ इसको करीब कर गया। कहाँ से ली इतनी मालूमात? नैना ने मुस्कुरा के इसके सीने पे हाथ रखा। हमारे अपने बहुत सोर्सेज हैं। मुराद मुस्कुराहट दबा के बोला, जी जी बिल्कुल। जैसे कि मरहा और यूशा? नैना घूर के बोली और इसके साथ चलने लगी। हाँ तो और क्या करता, तुम तो घास भी नहीं डालती थी। हाँ हाँ, नैना हंस पड़ी। हाँ तो तुमने भी तो मुझसे बदतमीजी की थी ना जब पहली बार मिले थे, नैना ने याद दिलाया। वो तो बस ऐसे ही तुम्हें देख कर दिल किया तो थोड़ा तंग कर लिया। मुराद बालों में हाथ फेर के बोला था। अब मैं तंग करूंगी। नैना की नजरें पानी वाले पाइप पे थी जो क्यारी में पड़ा हुआ था। मतलब? मुराद ने इसको देखा था। नैना ने कुछ कहने की बजाय पाइप मुराद की तरफ करके पानी खोल दिया। ये क्या कर रही हो नैन? नैन की बच्ची, पीछे करो इसे। मुराद एक हाथ मुंह पे रखे एक पानी की धार के सामने किए जोर से बोला था। हाँ हाँ, मुझे भी तो तंग किया था ना। नैना इसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर पाइप फेंक कर भागी थी। रुक जाओ नैन, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मुराद पीछे से चिल्लाया। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। नैना जोर से बोलती हुई घर के पीछे बने हुए पूल की तरफ भागी। मुराद हंसता हुआ पीछे गया। नैना पूल से थोड़े से फासले पे खड़ी थी। फेस मुराद की तरफ था जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रहा था। नैना कदम पीछे लेती गई। पीछे होते नैना बिल्कुल किनारे पर आ गई। अब जरा सा और पीछे होती तो सीधा पानी में जाती। नैना ने एक नजर पूल को देखा और एक नजर मुराद को, जो आंखों में शरारत लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। नहीं मुराद प्लीज, सॉरी ना। नैना आगे पीछे देखती हुई बोली थी। अब ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुराद ने मुस्कुराहट दबाई। मुराद बिल्कुल इसके पास खड़ा था। एक हाथ इसकी कमर में डाला। गिरा दूं? इसकी आंखों में देखा। नहीं। नैना ने नफी करते हुए इसकी शर्ट मजबूती से पकड़ी। पानी से अजीब सा खौफ था इसे। मुराद ने मुस्कुरा के हल्का सा इसको नीचे किया। नैना का पांव स्लिप हुआ और दोनों पूल में छपाक से गिरे थे। एकदम पानी में गिरने से नैना को लगा इसका सांस बंद हो गया हो। वो हाथ पांव मारने लगी। मुराद ने जल्दी से इसको कमर से पकड़ के ऊपर किया। नैना तेज तेज सांस लेने लगी। ठीक हो? मुराद फिक्रमंद हुआ था। हाँ। नैना इसके सीने से लगी। मुराद हंस पड़ा। नैना ने हैरत से सर उठा के इसको देखा। क्यों हंसे? नैना पीछे हुई लेकिन पानी की वजह से गिरने लगी तो फिर से इसको पकड़ लिया। रात को तुम मेरा सर फाड़ रही थी, अब मुझसे चिपक रही हो। मुराद ने मुस्कुराहट दबाई। नैना ने गुस्से से घूरा इसको, फिर इसके बाल दोनों हाथों में लेके खींच लिए। जंगली बिल्ली, मुराद कर रहा था। बाहर निकालो मुझे, नहीं तो मैंने तुम्हारा गला दबा देना है। नैना ने इसको झंझोड़ दिया। नहीं, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी मुंह दिखाई दी है, मुझे तो तुमने कुछ दिया ही नहीं। मुराद ने इसके दोनों हाथ पकड़े थे। मैं तुम्हें जहर न दे दूं? बाहर निकालो मुझे। नैना खतरनाक तेवर लिए बोली। मुराद ने कमर की पकड़ मजबूत करते हुए इसको और करीब किया और झुकते इसके लब कैद कर लिए। नैना का सांस पहले ही रुका हुआ था। इसने मुराद के सीने पे हाथ मारते हुए रोकना चाहा लेकिन वो ना रुका। मुराद ने पीछे होते इसको बाहों में उठा के पूल से बाहर निकाला था, फिर इसका हाथ पकड़ के रूम में ले गया। नैना तो खामोश ही थी। मुराद की इतनी कुर्बत पे जान मुश्किल में आ जाती थी इसकी। सीन चेंज। यूश प्लीज, आप अपने बाल बांध लें। शहराम बेबसी से बोला। क्यों, मेरे बाल आपको क्या कह रहे हैं? योशा जो यहाँ वहां टहलती हुई फोन यूज कर रही थी रुक के बोली। लंबे बाल की आबशार कमर पे बिखरी हुई थी। शहराम को बहुत जरूरी काम करना था जो आज ही पूरा होना था। आपके बाल मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, शहराम जब्त से बोला था। इसके पसंदीदा रंग में बाल खुले इसके सामने फिरती इसका इम्तहान बनी हुई थी। हद करते हैं आप भी, इतनी दूर से मेरे बाल आपको तंग कर रहे हैं। यूशा झंझला के कहती फिर फोन में बिजी हो गई, लेकिन शहराम के जज्बात भड़का गई थी। वो जो पहले ही मुश्किल से बैठा था सब छोड़ के लम्हे में इस तक पहुंचा था। आप मेरे जब्त का इम्तहान ले रही हैं। मैंने बहुत मुश्किल से दिल को काबू किया हुआ है ना, ये ना हो कि दिल बेकाबू हो और मैं आपको काबू कर लूं। यूशा घबरा के नजरें झुका गई। 2 महीने हो चुके थे शादी को और शहराम इस वक्त में यूशा को अपना आदी कर चुका था, लेकिन यूशा घबरा जाती थी इसकी शिद्दतों से। शहराम आपका काम। यूशा की हल्की सी आवाज आई। शहराम ने नजर अंदाज करके इसे कमर से पकड़ा, करीब किया और बालों की खुशबू अपनी सांसों में उतारी थी। यूशा की पलकें और नीचे हुई और गाल गुलाबी हुए। यह खूबसूरत मंजर देखकर शहराम की मुस्कुराहट गहरी हो गई।
सुनो जाना, तुम्हारे लंबे बाल, तुम्हारी गर्दन का तिल और होठों की सुर्खी से इंकशाफ हुआ है कि तुम वाजिबुल मोहब्बत हो। शहराम इसका गाल छू के कहता वापस चला गया, लेकिन यूशा की दुनिया में हलचल मचा गया। सीन चेंज। शान हॉस्पिटल से काफी लेट हो गया था। फ्रेश हो रहा था जब इसका फोन बजा। मरहा पास ही बैठी कुछ कर रही थी लेकिन इग्नोर किया। फोन फिर से बजा तो मरहा बोली, शान आपका फोन बज रहा है, अटेंड कर लो। शान बोला। मरहा ने फोन उठाया तो डॉक्टर फायजा का नाम आ रहा था। मरहा के माथे पे बल पड़े। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? मरहा ने अटेंड करके कान से लगाया तो फायजा की आवाज आई थी, प्लीज डॉक्टर शयान फोन बंद ना कीजिएगा, मेरी बात सुन लें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। वो मरहा आपके लायक नहीं है, प्लीज आप मुझ पे यकीन करें, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, आप इसको नहीं छोड़ना चाहते तो ना छोड़े, मुझसे भी शादी कर लें, मैं आपको इससे भी ज्यादा खुश रखूंगी। मरहा के गुस्से का ग्राफ बढ़ता गया। वो तो काफी दिनों से नोट कर रही थी ये सब, फायजा का बेवजह फोन करना। इस दिन शयान की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी था, लेकिन मरहा ने इग्नोर किया। अब दिल कर रहा था फायजा का मुंह तोड़ दे। बगैर जवाब दिए फोन बंद कर दिया। यह आखिरी बार था, अगली बार कुछ हुआ तो फिर। आज शयान दूसरे हॉस्पिटल गया था। वहां कोई काम था तो डॉक्टर फायजा भी साथी थी। जब से मरहा ने इसकी इंसल्ट की थी तब से वो शयान के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शयान कोई मौका ना देता था। इस दिन भी इससे टकरा के इसकी शर्ट पे निशान छोड़ दिया था। इससे कुछ ना बना तो फिर आज जब वापसी पे बारिश हुई तो फायजा जानबूझकर भीग गई। फायजा बहुत सालों से शयान के पीछे थी, लेकिन शयान इसको देखता भी नहीं था। यही फायजा को नागवार गुजरता था। फिर ये सोचती कि कभी न कभी तो मान ही जाएगा, लेकिन अब शादी के बाद तो सारा चांस खत्म हो गया था। इससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर शयान से इसका कोट मांगा तो शयान ने भी दे दिया, क्योंकि बारिश की वजह से इसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे और वो हद से ज्यादा बुरी लग रही थी। आने जाने वाले भी देख रहे थे, इसीलिए शयान ने दे दिया। बारिश शाम से हो रही थी। मरहा ने शयान को जल्दी आने का कहने के लिए फोन किया तो शयान ने ये कह दिया कि आज बिजी है। फिर घर आया तो कोट नहीं था। मरहा ने भी न पूछा न शयान ने बताया कौन था। शयान बाहर आते हुए बोला, डॉक्टर फायजा। दो लफ्जी जवाब देके फिर अपने काम में बिजी हो गई। शयान ने शीशे से ही इसको देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। हालांकि नाराज होना चाहिए था इसको कि आज शयान ने जल्दी आने से मना किया था। क्या हुआ? शयान फिर बोला, कुछ नहीं, यहाँ देखो। शयान ने इसको अपनी तरफ मोड़ा था। मरहा ने नजरें उठा के इसको देखा। मेरा गुलाब नाराज है? शयान ने प्यार से इसको साथ लगाया। नहीं। मरहा ने सर नफी में हिलाया। फिर क्या हुआ? मैं उदास हूँ। क्यों उदास है गुलाब? शयान इसको साथ लेके सोफे पर बैठा। वो अभी तक इससे लगी हुई थी। मुझे बारिश में भीगना था आपके साथ, आप आए नहीं। वो बसोर के बोली थी, सॉरी जाना, आज दूसरे हॉस्पिटल में काम था इसीलिए लेट हो गया। अभी भी बारिश हो रही है, अब भीग लो। शयान इसके माथे पे लब रखता हुआ बोला, नहीं। मरहा ने मना किया। आ जाओ, कुछ नहीं होता है, देखो अब तो मेरा भी दिल कर रहा है तुम्हारे साथ भीगने का। शयान इसका हाथ पकड़ के बालकनी में ले गया था। ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें मरहा के चेहरे पर पड़ी तो मुस्कुराहट खुद ब खुद ही आ गई थी। दोनों हाथ फैलाए गोल गोल घूमती छोटी बच्ची लग रही थी। शयान खड़ा इसको देख रहा था। काफी देर भीगने के बाद शयान इसको जबरदस्ती रूम में ले गया था। इसका तो जाने का कोई इरादा न था, लेकिन शयान उठा के ले गया। सीन चेंज। नैना रूम में गई थी कुछ देर के लिए, जबकि मरहा बाहर गार्डन में थी। जब सामने से फायजा आती हुई दिखाई दी, इसके हाथ में कुछ था, शायद शयान का कोट था। मुस्कुरा के चलती हुई इसके पास आई थी। कैसी हो मिस मरहा? अदा से बोली। मैं जैसी भी हूँ, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, तुम क्या करने आई हो यहाँ? मरहा गुस्से से बोली। रात वाली इसकी बकवास याद आई तो माथे पे बल पड़ गए। ये कोट देने आई थी। वो क्या है ना, शयान कल मेरे पास भूल गए थे। फायजा जता के बोली, बस हो गया, अब दे दिया कोट, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं। मरहा जब्त से बोली थी। दिल तो कर रहा था दो चार लगा ही दे इसको। फायजा को आग लग गई। तुम समझती क्या हो खुद को? जबरदस्ती शयान की जिंदगी में शामिल हो गई हो तुम। वो तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शयान की जिंदगी से निकाल दूंगी। शयान सिर्फ मेरा है। कल रात को भी वो इसीलिए देर से आया था। वो मेरे साथ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इससे दूर कर दूंगी। फायजा चिल्ला के बोली। चटा। पूरे घर में थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। मरहा ने रख के इसके मुंह पे मारा था। शयान से दूर रहो, वो मेरे हस्बैंड हैं, इन पे सिर्फ मेरा हक है। तुम जैसी लड़की पे वो थूके भी ना।
कल जाके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें। अगर तुम जैसी लड़की इनको पसंद होती तो आज यहाँ मैं ना होती। मुझे अपने शान पे पूरा यकीन है। आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, दोबारा कोई बकवास की तो जबान खींच लूंगी। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मरहा चबा के बोली, दिल तो कर रहा था दो और लगा दे। यूं फायजा इस पे हाथ उठाने लगी थी तो किसी ने पीछे से पकड़ लिया। ये गलती मत करना, वरना गुलाबों ने सिर्फ एक मारा है, मैंने तुम्हारा ये मेकअप से भरा हुआ थोपड़ा तोड़ देना है। अब शराफत से निकलो यहाँ से। यूशा पता नहीं कहाँ से आई थी और इसकी सारी बातें सुन भी चुकी थी। फायजा सुर्ख चेहरा लिए वहां से 9-2-11 हुई। जानती थी यूशा ब्लैक बेल्ट है, जो कह रही है कर भी देगी। इसने जाने में ही आफियत समझी, इसको जाने क्यों दिया, मैंने इसका मुंह तोड़ देना था। नैना रूम की खिड़की से फायजा को देखती आई, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। बस कर गुलाबो, तोड़ चुकी है इसका मुंह। यूशा ने रोका था। तुम ठीक हो? नैना इसकी तरफ आई थी। मरहा सर हिलाती बैठ गई। तुम इसकी बकवास पे यकीन नहीं करना, हम शायन भाई को अच्छी तरह से जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। यूशा ने इसके हाथ पे हाथ रखा। हाँ जानती हूँ, तुम बताओ खैरियत है? मरहा कहती इससे पूछने लगी। हाँ तुम दोनों की हेल्प चाहिए। यूशा मुस्कुरा के बोली। कैसी हेल्प? कुछ बताती हूँ, प्लीज चिल्लाना नहीं। यूशा मुस्कुरा रही थी। जल्दी बोल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नैना सदा की बेसब्री बोली थी। वो यार मैं कैसे बोलूं? यूशा शर्मा गई। क्या तुम? मरहा इसकी झिझक देखकर बोली। हाँ। यूशा लाल गुलाल हो रही थी। हाय सच्ची मेरी जान, मुबारका। नैना जोर से चीखती इससे लिपट गई। मुबारक हो मेरी जान। मरहा भी इसके गले लगी। दिल खुश कर दिया। नैना के तो दांत ही बाहर थे। अच्छा मेरी हेल्प कर दो ना दोनों। तुम हुक्म तो करो यार। यूशा ने अपना सारा प्लान इनको बता दिया। इन्होंने भी पूरी हेल्प की यूशा की। सीन चेंज। शाम को शायान घर आया तो काफी खामोशी थी। नैना दोपहर में शायान को फायजा की हरकत बता चुकी थी। शायान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर मरहा के थप्पड़ वाली बात पता चली तो अपने गुलाब की हिम्मत पे वाह वाह कर उठा। रूम में आया तो मरहा बेड पे झुकी हुई शीट ठीक कर रही थी। शायान दबे कदमों आया, इसको कमर से पकड़ के खुद से लगा लिया। आज तो मेरे गुलाब ने कमाल कर दिया। शायान इसके कांधे पे थोड़ी टिका के बोला था। कौन सा कमाल? नैना बता चुकी है मुझे आज सुबह क्या हुआ है। क्या तुम्हें एक बार भी मुझ पे जरा सा भी शक नहीं हुआ? शायान ने इसको देखा। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? लड़कियां तो ऐसी बातों पे बवाल मचा देती हैं, क्योंकि शक रिश्तों को कमजोर कर देता है। एक बार भी ये बीच में आ जाए तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिखा है तो गलत कैसे हो सकता है? मुझे आप पे खुद से भी ज्यादा यकीन है। मरहा प्यार से बोली। शुक्रिया मेरे गुलाब। वैसे इस पे तो इनाम मिलना चाहिए आपको। शान इसको बोलने का मौका दिए बिना ही झुकता चला गया। मरहा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर पुरसुकून होती चली गई। सीन जिन। शहराम थाने में था जब यूशा की कॉल आई थी। हुक्म मेरे जिन। शहराम फौरा से बोला था। आप कब तक आएंगे? आप हुक्म करें तो बंदा अभी हाजिर हो जाता है। नहीं, आप बस शाम को 5 बजे अपने बीच हट पे आ जाइएगा। यूशा मुस्कुरा के बोली। जी खैरियत? आजकल तो वैसे इसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल खैरियत है, बस एक सरप्राइज है आपके लिए। इसका रिएक्शन सोच के इसके दिल में गुदगुदी हुई थी। कैसा सरप्राइज? शहराम को तो जस्सुस हुआ। अभी थोड़ी बता सकती हूँ। यूशा मुस्कुरा के कहती फोन बंद कर गई। शहराम अरे अरे करता रह गया, फिर सरप्राइज सोचकर मुस्कुरा गया था। मुझे चूम कर, मुझे थाम कर, मेरी शिद्दतों में कयाम कर, ए दिलरुबा नाजुक अदा, तुझ पे फिदा एक शब्द तू मेरे नाम कर। शहराम यूनिफॉर्म में आ गया था। गन वगैरह गाड़ी में ही रखी थी। हट के करीब आया तो सामने ही यूशा नजर आ गई। रेड पैरों तक आती हुई फ्रॉक में, बालों का साइड जोड़ा बनाए हुए थी। एक साइड पे व्हाइट नेट के पर्दे लगाए गए थे। छत टाइप जगह बनाई हुई थी। एक टेबल रखा हुआ था, इस पे फूल पड़े हुए थे। शहराम चलता हुआ यूशा तक पहुंचा। क्या सरप्राइज है? शहराम ने जल्दी से पूछा। यूशा इसकी बेकरारी पे मुस्कुराई। आए। इसका हाथ पकड़ के टेबल तक ले गई। टेबल पे फूलों के बीच एक चॉकलेट केक रखा हुआ था और इस पे लिखा गया था डेट टू बी। शहराम ने पढ़ के सर हिलाया था, फिर एकदम से इसकी तरफ मुड़ा। सच में? खुशी से बोला ही न गया। यूशा ने मुस्कुरा के सर झुका दिया। शहराम का जोरदार कहका गूंजा और वो यूशा को बाहों में उठाते हुए गोल गोल घुमा गया था। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी। यूशा ने इसको रोका था। शहराम ने इसको नीचे उतारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी जिंद, इतने खूबसूरत सरप्राइज के लिए। शहराम दीवाना वार इसका चेहरा चूम गया था। यूशा ने इसका हाथ पकड़ के केक काटा। कुछ ही देर में बाकी सब ने भी आ जाना था। फिर सबका डिनर आज एक साथ था।
अभी वो दोनों खड़े एक दूसरे में मगन थे कि अचानक से फायर की आवाज गूंजी। यूशा डर के उछली। शहराम ने इसको साथ लगाया और पीछे मुड़ के देखा, जहां किंग का बेटा असद शाह हाथ में गन लिए खड़ा हुआ था। आजकल शहराम इसके पीछे था। शहराम ने इसका हर गलत काम रोक दिया था, इसके बंदे पकड़ लिए थे। बहुत गलत किया है तुमने एसपी, मुझसे पंगा लेकर। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा, असद शाह चिल्ला के बोला था। शहराम की आंखें लाल सुर्ख हुई थी। वो यूशा को साइड पे करके इसकी तरफ बढ़ा था। खबरदार जो मेरी तरफ आए, मैं इसको गोली मार दूंगा। इसने गन यूशा की तरफ की। शहराम रुक गया, यूशा की तरफ देखा जिसकी आंखों में खौफ से आंसू आ गए थे। इतने में बाकी सब भी आ गए। वो दूसरी तरफ से आए थे। असद इनको देख चुका था। शान और मुराद शहराम की तरफ आए और इन दोनों ने यूशा को संभाला था। वो तीनों असद की तरफ बढ़े। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वो तो सिर्फ डराने के लिए आया था, लेकिन मामला बिगड़ रहा था। वो दोनों ना रुके तो असद ने यूशा की तरफ फायर कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पे रुक गए। नैना, वो दोनों चिल्लाई, कोई नहीं आएगा मेरी जिंदगी में तेरे सिवा। एक मौत है जिसका हम वादा नहीं करते। सीन चेंज। इफ्तिशाम का काम पूरा हो गया था और वो वापसी की तैयारी कर रहा था जब शहराम का फोन आया कि नैना को गोली लग गई है और वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। ताज पैकिंग कर रही थी जब इफ्तिशाम जल्दी से रूम में आया। ताज जल्दी करो, हमें आज ही निकलना है। क्या हुआ शाम, सब ठीक तो है ना? हम तो 2 दिन बाद जाने वाले थे। मेरी बात ध्यान से सुनो और ठंडे दिमाग से सुनना। नैना को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है। शान इसको थामकर बोला। ताज लड़खड़ाई। इसने पकड़ा हुआ ना होता तो वो गिर जाती। शाम प्लीज जल्दी चलें, मुझे नैना के पास ले चलें। ताज इसका हाथ पकड़ के रोती हुई बोली। इसका 6वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने टेंशन देने से मना किया था, लेकिन वो इतनी बड़ी बात छुपा भी नहीं सकता था। रात के 8 बज रहे थे। वो दोनों एयरपोर्ट पे थे। 10 बजे की फ्लाइट मिली थी। रात को देर से ही वो कराची पहुंच सकते थे। ताज मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसका तो ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि इन दोनों पे क्या गुजर रही होगी जिनकी नैना में जान बसती है। सीन चेंज। डॉक्टर जल्दी आए, डॉक्टर। नैना को स्ट्रेचर पर लिए वो सब हॉस्पिटल में दाखिल हुए। गोली इसके पेट पे लगी थी। हॉस्पिटल काफी दूर था। खून रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत खून बह गया था। मुराद की वाइट शर्ट लाल सुर्ख हो चुकी थी। असद को पकड़ के शहराम हॉस्पिटल आया तो यूशा भाग के इससे लिपट गई। यूशा बच्चों की तरह बिलखती हुई शहराम के सीने से लगी नीचे बैठती चली गई। शहराम ने इसको पकड़ा था। दुआ करें आप, वो ठीक हो जाएगी। शहराम ने बहन न सिर्फ कहा था इसको, बल्कि माना भी था। मुराद की तो धड़कन ही रुक गई थी। सांसें अटक रही थी इसकी। कहीं कुछ गलत हो गया तो? इससे आगे तो वो सोचना भी नहीं चाहता था। अभी तो इसकी जिंदगी शुरू हुई है, फिर कैसे वो छोड़ सकती है इसको? लाल सुर्ख आंखें लिए खून से भरी शर्ट बिखरी हुई हालत में वो ऑपरेशन थिएटर के शीशे से अपनी नैन को देखता इसका अंग अंग अपनी नैन के लिए दुआ कर रहा था। प्लीज अल्लाह पाक मेरी नैन को ठीक कर दे। इसको अब सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सब आपके हाथ में ही है। आप चाहें तो सब हो सकता है। अगर आप चाहें तो कोई इसको मुझसे नहीं छीन सकता। अल्लाह जी, आप तो सब जानते हैं ना। इसकी जिंदगी बख्श दें, ठीक कर दें इसको। अभी तो हमने साथ जीना है। आप चाहें तो वो ठीक हो सकती है। अगर आप ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आपके कुन की जरूरत है। ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे अपनी नैन की जिंदगी मांगता हूँ। मुराद दिल में अल्लाह से मुखातिब अपनी जिंदगी की जिंदगी मांग रहा था। सब अपनी सोचों में गुम थे कि डॉक्टर बाहर आए। सब बेचैनी से इनकी तरफ बढ़े थे। मेरी नैन कैसी है? मुराद बेचैनी से बोला। काफी ब्लड जाया हो गया था, गोली निकाल दी है हमने। अब वो खतरे से बाहर हैं। अभी हमने इनको कुछ घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोला था। अल्लाह तेरा शुक्र है, सबकी जबान से बेसाख्ता निकला। क्या हम मिल सकते हैं इनसे? यूशा बोली। अभी नहीं, कुछ देर में हम इनको रूम में शिफ्ट करेंगे। फिर डॉक्टर कहता हुआ चला गया। कुछ ही देर में इफ्तिशाम और ताज आते दिखाई दिए। नैना कैसी है? ताज जल्दी से इनके पास आके बोली। ऑपरेशन हो गया है, अब खतरे से बाहर है। मरहा बोली। अल्लाह का शुक्र है। कैसे हुआ ये सब? इफ्तिशाम इन तीनों के पास पहुंचा तो शयान ने इसे सारी बात बता दी। कहाँ है वो जलील? में इसकी वो हालत करूंगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। इफ्तिशाम गुस्से से बोला था। अभी नहीं, मैंने इसको शकूर के हवाले कर दिया है, वो देख लेगा। अभी हमारी यहाँ जरूरत है। शहराम ने इसको ठंडा किया। कुछ देर में नैना को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ ही घंटों में रंगत जर्द पड़ गई थी। हाथ पे ड्रिप लगी थी, आंखें बंद थी। इसको देखकर मरहा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया।
ऐसी तो नहीं थी वो, हंसती मुस्कुराती सबको हंसाती नैना तो वो कहीं से भी नहीं लग रही थी। अभी सब देख ही रहे थे कि नैना ने हल्की सी आंख खोली। हिलने की कोशिश में दर्द हो गया। नैना आराम से। मिसेस हमदानी आगे बढ़ी थी। एक साइड से यूशा ने सहारा दिया और इसका सर थोड़ा सा ऊंचा किया। नैना सबको देखकर हल्का सा मुस्कुराई। बड़ा ही कोई बहादुरी का काम किया है जो हंस रही हो। शाम से जान सुखाई हुई है हमारी। शहराम माहौल की उदासी कम करने के लिए बोला था। आपकी जान बचाई है, ये कोई कम बहादुरी थोड़ी है। नैना बमुश्किल मुस्कुरा के बोली थी। मेरी जान तो बचाई, जो इसकी जान जा रही है इसका कोई ख्याल है कि नहीं। यूशा ने मुराद की तरफ तवज्जो दिलाई जो साइड पे खड़ा बिखरा हुआ लग रहा था। इसको मैं देख लूंगी। नैना से बोला नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी वो बोली थी। सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले गए। ताज को इब्तिशाम ने घर भेज दिया था। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। खुद वो थाने चला गया था। सिर्फ वो तीनों ही रह गई थी। अच्छा नहीं किया तुमने नैना। तुम्हें मेरे आगे नहीं आना चाहिए था। अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते। यूशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्यों ना आती सामने। आखिरी सांस तक निभाने का वादा किया है। कैसे तुम्हें कुछ होने देती। जान हो तुम मेरी, तुम दोनों। अगर दोबारा कोई मुसीबत आई तो मैं दोबारा इसको खुद पे ले लूंगी, लेकिन तुम दोनों पे आंच भी नहीं आने दूंगी। नैना मुस्कुरा के बोली। अगर कुछ हो जाता तो। मरहा भी बोली थी। कुछ हुआ तो नहीं। फिर भी यार, तुम्हें पता भी है हम कितना डर गए थे। हमारी ये हालत थी तो तुम मुराद का सोचो, इसका क्या हाल हुआ होगा। मरहा ने समझाने की कोशिश की। कुछ भी हो, मेरे लिए मेरी दोस्ती सबसे पहले आती है। सीनजे, मेरी पेशानी पे रख दस्त मोहब्बत अपना। देख शहजादे, ये बीमार का हक होता है। मुराद दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ। खून से भरी शर्ट, बिखरे हुए बाल, सुर्ख अंगारा आंखें। वो खुद भी बिखरा हुआ था। नैना के दिल को कुछ हुआ। इसके बेड के करीब रुक गया। नैना ने अपना ड्रिप वाला हाथ आगे किया तो इसने पकड़ लिया। नाराज हो। नैना की प्यार भरी आवाज आई। मुराद ने ना में सर हिलाया। उदास हो। फिर से ना किया था। फिर नैना ने थोड़ा सा साइड पे होके इसके लिए जगह बनाई थी। मुराद साथ बैठा। एक बाजू इसके कांधे पे रख के इसका सर अपने सीने पे रख लिया था। डर गया हूं। इसकी आवाज में नमी थी। मैं ठीक हूं। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है। ये घंटा मैंने किस तरह गुजारा है मुझे नहीं पता। बस यही लग रहा था तुम दूर जा रही हो। मेरी धड़कन रुकती हुई जा रही थी। मेरी सांसें बंद हो रही थी। मुराद कहता हुआ इसको खुद में भींच रहा था। एक आंसू इसकी आंख से निकलकर नैना के बालों में जज्ब हुआ था। मैं ठीक हूं मुराद, देखो तुम्हारे पास हूं। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। नैना इसके चेहरे पे हाथ रखती हुई इसको यकीन दिलाती खुद भी रो पड़ी थी। क्यों क्यों तुमने खुद को खतरे में डाला। क्या एक बार मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। नैना ने जल्दी से इसके मुंह पे हाथ रखा। इसके आंसू देखकर नैना तड़प गई थी। तुम्हारा ख्याल आया था तो लौट आई, वरना जा रही थी। नैना इसके आंसू साफ करती बोली। अभी तो हमने साथ जीना है। मैंने तुमसे लड़ना भी है। और फिर हमने अपने बच्चों की शादी भी तो करनी है। नैना इतने प्यार से बोली कि मुराद नम आंखों से हंस पड़ा। आई लव यू मेरी जान। मुराद इसका माथा चूमता हुआ इसको सीने से लगा गया। नैना को दर्द तो हुआ लेकिन बर्दाश्त कर गई। आई लव यू 2 3 4 अनलिमिटेड जोर से बोली तो मुराद भी हंस पड़ा था। सीन चेंज। मुस्कुराहट आ जाती है अक्सर गुस्से में भी तेरा नाम सुनकर। तेरे नाम से इतनी मोहब्बत है तो तुझसे कितनी होगी। 7 साल बाद। पुलिस यूनिफॉर्म में फुल तैयार, बाल जेल से सेट किए, बड़ी हुई दाढ़ी में शहराम थाने में दाखिल हुआ। सबको सलाम करता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। अपने पीछे दबी दबी हंसी की आवाज सुनी लेकिन इग्नोर करता हुआ चला गया। अभी चेयर पे बैठा ही था कि किर्च किर्च की आवाज आई थी। शहराम जल्दी से खड़ा हुआ। पैंट की पिछली पॉकेट में हाथ डाल के देखा तो चिप्स और चॉकलेट के रैपर्स निकले। जरूर बाहर सबको नजर आए होंगे इसीलिए वो हंस रहे थे। रैपर डस्टबिन में डाल के फोन से किसी को कॉल की। 2 बैल के बाद ही अटेंड कर ली गई। शहराम, अभी तो आप गए हैं, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। यूशा की हंसती मुस्कुराती आवाज आई। मेरी जिन, आपकी याद तो हर वक्त ही आती है। फिलहाल आप ये बताएं कि हमारे घर में कोई डस्टबिन है। शहरान संजीदा सा बोला। इस वक्त यह पूछने के लिए फोन किया है। यूशा को तो तभी चढ़ी थी। ये चिप्स और चॉकलेट के रैपर्स मेरी पॉकेट में क्या कर रहे हैं। शहराम ने मुस्कुराहट दबा के पूछा। जानता था आगे से क्या जवाब मिलेगा। ये जरूर आपके दोनों सपूतों का ही काम है। नाक में दम करके रखा है।
रोज कोई ना कोई नया ड्रामा होता है इनका। एक बार हाथ लग जाए ये मैं तबीयत सेट कर देती हूँ इनकी। यूशा की गुस्से से भरी हुई आवाज गूंजी थी। आप गुस्सा ना हो मेरी जिन, मैं अपने शहजादों को खुद देख लूंगा। आप बस मेरी शहजादी को संभाल लें। शहराम प्यार से इसका गुस्सा ठंडा करते हुए बोला था। जब से ये तीनों इनकी जिंदगी में आए थे इनकी जिंदगी की रौनक बढ़ गई थी। यूशा इन तीनों के साथ बहुत बिजी रहती थी। थे तो वो 6 साल के, लेकिन काम एक से बढ़ के एक थे इनके। यूशा के ट्रिपलेट्स हुए थे, आरिश, अर्शमान और अलीना, जबकि ताज के 2 बच्चे थे, 7 साला जिशान और 5 साला मिसबा। जिशान एक समझदार बच्चा था, लेकिन मिसबा इसके बिल्कुल उलट थी। सीन चेंज। चलो जाओ अपने रूम में, मुझे अपनी बीवी के साथ बातें करनी है, मुराद घूर के बोला था। काफी देर से वो बैठा इसके जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद इसका कोई इरादा न था। मैं नहीं जा रहा। खिजर नैना से लिपट के बोला। क्यों नहीं जा रहे तुम? मुराद इसके सर पे पहुंचा था। नैना मुस्कुराते हुए दोनों को प्यार से देख रही थी। मुझे नींद नहीं आती है अकेले रूम में। खिजर मुंह बना के बोला था। हाँ तो मैं क्या करूं? मुराद ने इसको पकड़ के जोर से हक किया था। आप मुझे मेरी नैन डार्लिंग ला दें, मैं इसको हक कर लूंगा। खिजर संजीदगी से बोला। नैना ने इसको हैरानगी से देखा। ये कहाँ से सुना इसने? खैर, जितना वो तेज है कुछ भी तो की जा सकती है इससे। वाह बेटा, बहुत खूब। दूध के दांत टूटे नहीं हैं और तुझे डार्लिंग चाहिए। मुराद ने इसका कान पकड़ा था। हाँ तो आप भी अपनी डार्लिंग को हक करते हैं। खिजर ने शरारत से कहते हुए वहां से दौड़ लगा दी। जूतों का खतरा हो सकता था। रुक, तुझे मैं डार्लिंग लाके देता हूँ। मुराद इसके पीछे गया, लेकिन वो भाग चुका था। नैना हंसी। बहुत तेज हो गया है। हाँ ना, मुझ पे गया है। मुराद इसकी गोद में सर रख के लेट गया। झूठ सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नैना इसके बालों में हाथ फेरती बोली। हाँ, लेकिन बीवी से रोमांस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मुराद के झटके से साइड पे होते इसको खुद पे घिराया था। हाँ, बस यही काम है तुम्हें। नैना घूर के बोली। हाँ तो बीवी से रोमांस सबसे बड़ा काम होता है। मुराद इसको बोलने का मौका दिए बिना इस पे झुक गया। नैना और मुराद का सिर्फ एक ही बेटा है, खिजर मुराद मलिक। गोली लगने की वजह से नैना की डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसकी वजह से मुराद ने कहा था कि इसके लिए एक ही बेटा काफी है। मैं नैना को और तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त के साथ नैना मुराद की लड़ाई कम हो गई थी, लेकिन अभी भी होती थी। नैना अभी भी मुराद को बहुत तंग करती थी। कभी इससे खाना बनवाती, कभी मेकअप कराती, तो कभी रूम की सफाई। मुराद भी थोड़ा सा इसको तंग करके काम कर देता था। सीन चेंज। गुलाब, आप मेरी डायरी भी चेक कर लें। शाहजर इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था। मरहा इस टाइम बच्चों को खुद ही पढ़ाती थी। कितनी दफा आपको बोला है ये सिर्फ मेरा गुलाब है, तो मम्मा बोला करो। वॉशरूम से निकलता हुआ शायान इसकी बात सुन चुका था। डैड, मैंने भी आपको बोला है कि ये मेरी लाइफ का भी गुलाब है। शाहजर भी संजीदा सा बोला था। शाहजर भी खामोश तबीयत वाला बिल्कुल शायान जैसा था, लेकिन शायान के सामने जो मजा इसको मरहा को गुलाब बोल के आता था वो किसी काम में नहीं आता था। जब शायान घर ना हो तो वो उसे मम्मा ही बोला करता था। शायान, वो बोल रहा है तो बोलने देना, आपको क्या कहता है? मरहा ने शायान को टोका। अपने लाडले के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं था इसे। मरहा भी बहुत बोलने लगी थी। मैंने क्या बोला है? तुम्हें तो बस ये अपना लाडला ही नजर आता है, शोहर का कोई ख्याल नहीं है। शयान कहता हुआ शमियाम को उठा के सोफे पे ले गया था, जो सबकी शक्लें देख रही थी। आ जाओ बाबा की डोल, हम बातें करते हैं। किसी को हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। शयान ने शमियाम को अपनी गोद में बैठा के किसी को देखा था, लेकिन वो किसी अपने बच्चे के साथ बिजी थी। बच्चों को इनके रूम में छोड़ के मरहा थोड़ा सा काम करके वापस आई तो शयान अभी भी वैसे ही बैठा था। आप नाराज हो गए हैं शयान? मरहा इसके पास आके बैठी थी। नहीं मेरा गुलाब, तुमसे नाराज हो गया तो खुद कहाँ जाऊंगा। बस मुझे कुछ होता है जब शाहजर तुम्हें मेरी तरह गुलाब कहता है। शयान ने जोर से इसको खुद में भींचा था। आप अपने बेटे से जेलस होते हैं शयान, कितनी बुरी बात है। मरहा ने आंखें फैलाई थी। मैं तो इस झुमके से भी जेलस होता हूँ जो हर वक्त तुम्हारे गाल के करीब रहता है। शयान ने इसका झुमका उतार दिया। क्यों, ये क्या कहता है? हद है, कोई बेजान चीजों से भी जेलस होता है भला? तुम पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। इन बेजान चीजों का भी हक नहीं है कि तुम्हारे इतने करीब रहें। शयान इसका माथा चूमता हुआ बोला। सीन चेंज। सुबह से घर में तैयारी हो रही थी। पूरा घर ब्लू फूलों और बलून से सजाया हुआ था। आज खिजर का बर्थडे था। सब आज मलिक विला में ही जमा थे। बच्चों ने तो सुबह से मिलकर उधम मचाया हुआ था। आरिश और अर्शमान को खिजर की कंपनी मिल गई थी, तो वो हर उल्टा काम कर रहे थे। पार्टी शुरू हो गई। सब गेस्ट आना शुरू हो गए।
सब बच्चे हॉल में थे, लेकिन खिजर गायब था। काफी वेट किया लेकिन ना आया। आखिर इसके रूम में गए सब, लेकिन आगे का मंजर देखकर सबकी आंखें खुल गई थी। नैना डार्लिंग, देखो मैं नई लिपस्टिक लेके आया हूँ। आज मैंने तुम्हारा मेकअप किया है ना, देखना सब देखते रह जाएंगे। खिजर शमयाम का हाथ पकड़ता हुआ बोला था। शमयाम ने भी जोर से सर हिलाया जैसे सब समझ आ रहा हो। आ जाओ डार्लिंग, बाहर चलते हैं। एक तरफ से इसका बाबी फ्रॉक उठा के इसका हाथ पकड़ता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन सबको देखकर रुक गया। सबके होठों पे दबी दबी हंसी थी, लेकिन नैना और मुराद इसको घूर रहे थे। नैना और मुराद इसको घूर रहे थे, जो बड़े मजे से इनकी एक्टिंग कर रहा था। जब नैना ने मेकअप कराना हो, मुराद हाजिर होता था। ज्यादा मेकअप का सामान भी नैना मुराद से ही मंगवाती थी। खिजर भी इस वक्त मुराद बना हुआ था, जबकि शमयाम का मेकअप जितना खतरनाक था, वो नैना लगना तो दूर की बात है, इंसान भी नहीं लग रही थी। आंखों पे और इर्द गिर्द काला रंग, होठों के ऊपर नीचे लाल लिपस्टिक, इसके इतने प्यारे गाल इस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। श्यान ने जल्दी से इसको उठाया था। ये क्या हाल किया है उल्लू के पट्टे, मेरी फूल सी बच्ची का। श्यान सदमे से बोला था। चाचू, ये मेरी नैन डार्लिंग है, इसको मुझे दे दे। खिजर ने इसकी शर्ट खींची। हाँ भाई गुलाबो, दे दो अपना ये फूल मुझे। नैना ने आगे बढ़ के शमयाम को गोद में लिया। हम नीचे चल के बात करते हैं, चलो खिजर, केक कट करना है। मुराद ने सबको याद दिलाया था। केक काटने के बाद खाना सर्व किया गया था। काफी देर तक पार्टी चली। गेस्ट चले गए तो सब बच्चे खेल में मगन हो गए थे, और बच्चों के अम्मा अब्बा सब साथ बैठे चाय से लुत्फ अंदोज होने लगे थे। वैसे आप सबका क्या ख्याल है, हमें आपस में रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए? नैना बोली। हाँ, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। मरहा भी बोली थी। अभी हम ये सब नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बड़े होके इनकी क्या पसंद हो हम नहीं जानते। ये ना हो हमारे तय करदा रिश्ते इनको सही ना लगे, इसीलिए फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ताज बोली। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ताज। योशा ने भी तायद की। वहां देखो, मरहा ने सबकी तवज्जो इधर कराई थी, जहां खिजर शमयाम का हाथ पकड़े इसके साथ डांस कर रहा था, जबकि बाकी ऑडियंस का काम करते हुए तालियां बजा रहे थे। शाहजर और जिशान नहीं थे, वो एक साथ ही होते थे। हम कुछ भी कहें नैना, लेकिन ये खिजर तो लट्टू हो गया है शमयाम पे, यही तेरी बहू बनेगी। यूशा बोली तो सबका कहका गूंजा था। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस नॉवल। अब आप सबने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और अच्छी अच्छी सी नॉवेल्स सजेस्ट करनी है। और जहाँ तक पॉसिबल होगा, अगर वो ई बुक ना हुई और राइटर्स की परमिशन हुई कि मैं उसको पढ़ लूँ, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज।